proceeding, I would like to share that NGO Missiondeep is also waiting to have you as a esteemed guest for Chai Wai at Missiondeep for coming week. Yes, I want you to be here, so please be part of it. I, your host, Kursima Preet Kaur, and with my team member, Program Coordinator, Mrs. Amrita, Studio Set in Charge, Mrs. Tarun, and for the recording and handling all the technical terms, we have Mr. Manpreet Singh. So all my team members welcome you for the first episode of this very chit-chat show. Applause for all the team members and thank you for giving your time. Now I would like to proceed. Yes, the vision behind the formation of the idea of the guest of the day is by Sardar Kamalpreet Singh, the founder, president of the NGO Missiondeep Educational Trust. So this is basically Mr. Kamalpreet Singh's idea, which we will try to get it in the concrete form. So my today's guest is Mrs. Navneet Kaur, a well-educated woman entrepreneur. So very warm welcome to you, Navneet. And I would like to also say something. I got a huge list of her degree courses. Yes, she's a postgraduate diploma in computer application, MSc in computer science, MCA, MBA in human resources. Oh my God, working with Srimati Parvati Devi Hospital as a communication manager and is also engaged in her own boutique business. Navneet, it's a huge list, right? About your work, first about your education. So before I start with my few of the questions, that I thought that I'll pursue, I want to say that isn't it a challenging process because you being a woman from all the different fields, and then you are into IT also, but then you are into the the designing of the suits for that technical taste of the women. So how you feel that your soul has acquainted with the different shades of the society around? Yeah, basically, actually, I always want to engage myself with the activities, not with the the normal jobs and all. मेरा ये होता था कि मैं अपने आप को ऐसी ऐसी चीजों में एंगेज करूं कि मेरा जो नॉलेज है वो बढ़े, ना कि वो उधर का उधर ही ना कि वो उसी जगह तक लिमिटेड हो जाए। हाँ, तो मेरा ये आपने हमेशा सोचा कि आपकी जो सीमाएं हैं वो सीमा नहीं होनी चाहिए, that should be always increased to the other level then to the other level. Yeah, definitely. Okay. So was it something pre-planned कि ऐसे होगा, पहले MBA होगी, फिर MCA होगी, फिर IT का कुछ और करेंगे, फिर you will do, ऐसा कुछ था कि it just happened to be? No. After my PGDCA, my father has decided that you should go for MCA. At that time, I was not ready for MCA, but he insisted me. मेरे को बोलते कि नहीं तू कर ना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू कर, ये तेरे को फायदा करेगा। मैं बोल रही हूँ कि पापा ये तो अमृतसर है, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। अमृतसर में खास तौर पे मेरे ऑडियंस भी जानते हैं जो इस शहर के हों, वाकई बड़ा प्यारा शहर है, वाकई बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन जो इस हमारी इंटरेक्शन सेशन को, इस सेशन को अमृतसर से बाहर के जो लोग देख रहे हो, चाहे वो पंजाब की हो, पंजाब से बाहर या इंडिया के बाहर, yes, it is considered अमृतसर में क्या है भाई, वो तो छोटा सा मतलब जॉब्स के लिए अगर हम बोलें कि IT फील्ड का इधर कुछ ऐसा है नहीं, rather than in metro cities you have good scope and all things. That gives you better. So I did MCA, but उसके बाद मेरे को एक फैकल्टी का मिल गया जॉब, मैंने जावा लेक्चरर का जॉब किया, जहाँ से मैंने MCA कंप्लीट किया, उधर से ही डायरेक्टर अच्छा, जहाँ से आपकी MBA कंप्लीट हुई, नॉट MCA कंप्लीट हुई, वहाँ ही as a Java lecturer, I got call from Java, you got an opportunity. So वो opportunity अपने pursue की। डेफिनेटली फिर फादर ने मेरे को बोला कि इसलिए मैं बोल रहा था कि तू MCA कर, इससे क्या होगा तेरा कॉन्फिडेंस
एक एमसीए करने के बाद आपको जो जॉब मिलता है ना, वो एक लेवल उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा जी। सो इस वजह से किया। तो फिर मैंने बोला हाँ पापा आपने बोला था, जो so, बोला था पापा वो ठीक था। आप सही थे। तो आप फायदे में रहे। हाँ, That's definitely. good. आगे फिर Then at that time, after completing my MCA, I was in Chandigarh, and then I did job as software debugger also. okay. Then I got married, and I have to come back in Amritsar again. So I love my town city, home city very much. But the thing is, as it's just truth that there is no scope of IT. So then I thought that I should go for another degree. डिग्री कोर्स। So that तो is एमसीए करने के बाद आपको लगा कि कुछ और करना चाहिए। हाँ। तो फिर उसके बाद आपने क्या शुरू किया? फिर लगा कि इधर अगर मैं कुछ एमबीए में फाइनेंस में या उसमें इसमें ह्यूमन रिसोर्स में जाती हूँ तो इट विल वर्क। ओके। सो देन आई चूज एचआर। सो आई कंप्लीटेड माय एमबीए पुणे यूनिवर्सिटी। एमबीए आपने पुणे यूनिवर्सिटी से की In- so that you could get the better options. या लेकिन बिकॉज ये सारा सफर आपने अपने शहर अमृतसर के थ्रू ही तय किया। हाँ जी हाँ जी, फिर आगे। और उसके बाद एमबीए कंप्लीट करने के बाद आफ्टर ईयर मेरे को हॉस्पिटल में जॉब मिल गया। दैट जॉब इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज आई एम टोटली बिलोंग टू आईटी and or you can say teaching field. And right now there is a call from hospital that you want to join as a HR executive, not HR manager. Within 3 months, I got promoted and then become HR. कौन से हॉस्पिटल से आपको? This is Shrimati Parvati Devi Hospital. रंजीत एवेन्यू Yeah, ए it's ब्लॉक A block, अमृतसर। Amritsar. तो वहां से आपको कॉल आई तो आपने उसको ज्वाइन किया एज HR executive. our HR executive. And after what duration you became the manager? Within 3 months, I got promoted because the people are Huge very. applause that your dedication gave you the to step ahead on the ladder. Yeah, this is the reason that still I am with the same hospital. You're working with the Same hospital. and at the same designation. No, now designation is communication manager. So again आपको एक step और उन्होंने Yeah, आगे one कर step दिया, more. one step more ahead. Yeah. That's really great to know about this. I am feeling that you have been working with the very regular pace and you have reached to a good level after pursuing your education. And इसके साथ ही I would like to come ahead with a question. Any incident that molded your personality as a stronger person, or on the other side added some black horror shadows in your life? Because होता है ऐसा that sometimes there is a incident that pop ups and that crocks the hope कि yes ये करता है, there is a chance, and sometimes the incident is of the darker shade that always not be your thought process. So anything that was a turning point in your life that affected you? Yeah, definitely. जब ये communication manager की job पे आ गई मैं, Right. तो इस job में मेरे को regular hospital नहीं जाना पड़ता। अच्छा जी, मतलब you can work from home. I can work from home. And usually in a month, only 2-3 times I need to go to the hospital. Okay. Regarding for meetings and all. That's all. Then I thought कि ऐसे तो घर पे बैठ के मेरा जो अंदर का एक मेरे को हमेशा रहता था कि मैं किसी न किसी चीज में एंगेज रहूं। कभी भी ऐसे घर पे बैठ के ये जॉब करने के हाँ। बावजूद आपको लगा कि नहीं, you are not pursuing some particular profession or the career is not growing. मेरे को लगा कि मेरा जो स्किल्स हैं वो अभी खत्म हो रहे हैं अगर मैं घर पे बैठी रहूंगी तो। Right. Then I talked with my husband and my family members. They are very supportive. Okay. मैंने उनको बोला भी क्या कि मैं अभी एक बुटीक शुरू करना चाह रही हूँ। स्टिचिंग का मेरे को कुछ भी नहीं आता है, एक सुई में धागा डालना आता है, that's it, और मेरे को कुछ नहीं आता है। अगर टेलर बोल दे कि मैडम ये तीरा इसका ऐसे है तो आई यूजली हैव नो आंसर और आई जस्ट से कि मास्टर जी ये आपका काम है, ये आप ही करोगे, बट कस्टमर खुश होना चाहिए। So you knew it कि what should be the end point of the entire this process. तो फिर हस्बैंड ने बोला कि तू बुटीक करेगी, सारा दिन तो तू फोन पे रहती है, हॉस्पिटल के कॉल्स आ रहे हैं, और समटाइम ऐसा होता था कि जैसे एक जब बुटीक का पर्सन आपको फोन करेगा तो वो आपका क्लाइंट होएगा, और अगर कोई पेशेंट फोन करेगा तो वो पेशेंट होएगा। तो क्या होता था, रेंडमली जब फोन आया है, एक फोन मेरे पास हॉस्पिटल वाला है, एक पर्सनल वाला है,
तो मेरे साथ बड़ी बार ऐसा हुआ कि क्लाइंट का पेशेंट का कॉल और क्लाइंट को पेशेंट बोला जाता था और पेशेंट को क्लाइंट। तो ये तो मेरे पास even you were confused because the two professions Two you were. professions, So और- ऐसा कभी हुआ नवनीत जी कि जब आप कंफ्यूज रहे तो आपके आसपास वाले लोग आपको वो कहते हैं तंज लगा देते थे या थोड़ा सा बोला था ना दो बेड़ियों में पैर डालोगे तो ऐसा ही हाँ, होगा। यूजली तो अभी Usually आज भी होता है, ये तो आज भी होता है, आज भी कि होता है। आपको कहा जाता है, आपको वो टॉन्ट्स आते हैं कि भाई एक ही काम कर ले, करना तो अच्छी तरह से एक ही कर ले, घर भी संभालना है, तो दो चीजें हाउ विल यू मैनेज। तो इसके बावजूद आपने सोचा कि ये दोनों प्रोफेशंस को आप एक साथ लेकर चलना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली। अभी तो पहले तो जब मेरे को बोला ऐसे कि तू तो मतलब ऐसे अपने आप को इतना ज्यादा मत इन्वॉल्व कर कि तेरा वो काम भी मिक्स हो जाए, वो काम भी, फिर मेरे को लगा नहीं यार, अब तो ये मेरे लिए चैलेंज है एंड डेफिनेटली आई गो फॉर इट, और मेरे को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही करना है। अभी जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम आता था, जैसे मीटिंग है, इधर मेरे कुछ मैरिजेस के फंक्शंस थे, है ना, ऑर्डर ज्यादा हो गए एंड आई वाज द ओनली पर्सन एंड स्टिल नाउ आई एम द ओनली पर्सन, तब भी अकेली थी आज भी, बट एक सपोर्टिंग हैंड जो था वो मेरे हस्बैंड का ऑलवेज मेरे साथ रहा है। रेदर ही इज So what's the good name of this lucky guy who got married to you? What's his name? संदीप सिंह। So I would like to congratulate Mr. Sandeep Singh that you have got a very hard-working and enthusiastic wife, but very true for her successful career, and she may be a very successful woman in coming times. That's what we all pray. But yes, whenever another interview she'll cover at the better level, she will surely again mention your name because you were the support, though behind the curtain, but the ultimate push which she needed, and she will be needed in coming times also. So that's really nice to hear. हाँ जी, फिर डेफिनेटली क्या होता है कि जब ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं तो मेरा ये है कि ये मेरे को ऑलवेज बोलते हैं तेरा ऑर्डर आया तू प्राइस लिख, सबकी कॉपी लगा ले, और मैं बोलती नहीं ये काम आपका है, बिकॉज बेसिकली ही इज फ्रॉम फाइनेंस, ही डिड एमबीए इन फाइनेंस, मतलब हम दोनों ने इकट्ठा ही करा था एमबीए, मैंने एचआर में परस्यू किया और इन्होंने फाइनेंस में किया। अभी जो मेरा फाइनेंस का काम है वो सब हैंडल करते हैं, एट लास्ट मेरे को बोलेंगे काम तो तेरा मैंने किया है, तो ये जो फिर कमीशन है ये तेरी तो बनती नहीं है, ये तो फिर मेरी बनती है, तो फिर ये मतलब अगर वो नहीं होते, मेरे साथ सपोर्ट नहीं करते मेरे को, तो डेफिनेटली मैं ये सब चीजें कभी कर ही ना पाती। अब घर बेसिकली देखा जाए तो नाउ आई एम हैंडलिंग 3 थिंग्स, घर देख रही हूँ, अपना ये जॉब देख रही हूँ, एंड थर्ड वन इज माय बुटीक। और बुटीक मेरा ऐसा शौक बन गया ना अभी कि मेरे को हॉस्पिटल वाले भी बोलेंगे तू कैसे मैनेज करती है, मैंने बोला कि सर जैसे आपके फोन मैं हैंडल करती हूँ, तड़का लग रहा होता है, एक साइड में मैं पेशेंट के फोन सुन रही होती हूँ, उनको बता रही होती, तो ऐसे मेरा बुटीक भी चल रहा है, तो डेफिनेटली अभी इसको तो मैं बंद करने नहीं वाली। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम औरत को कहते हैं कि वो सिर्फ एक ही काम कर सकती है, पर आप शुरू से देखें वो एक बेटी है, बेटी के बाद वो बीवी भी है, किसी की पत्नी है, फिर वो माँ भी है, किसी की बहन भी है, किसी की सहेली भी है, और हर रोल में उसका जज्बा और उसकी नीयत अगर साफ है, अगर जज्बा ऊंचा है, तो the woman has done the marvelous jobs in each and every field. So I would like to join my hands, put my hands together for the huge round of applause for the entire womanhood. And remember, all the men around, you will surely get a great privilege one day. Once the ladies you supported, they will reach to the peak. मेरा ख्याल से नवनीत जो आप कह रहे हैं कि स्पेशली द मेन फोक जो है, मेन फोक है, अगर वो लेडीज की हेल्प कर रहे हैं और जिस दिन ये लेडीज एक मुकाम पे पहुंचेंगी उस दिन ये फक्र की बात होगी उनके लिए भी, उनके घर वालों के लिए भी, उनके फादर्स, उनके हस्बैंड्स, उनके ब्रदर्स के लिए भी, बिकॉज भगवान ने औरत को ममता की मूर्त तो बनाया ही है, प्यार की मूर्त भी बनाया है, दुर्गा भी बनाया है, काली भी बनाया है, उसमें वो हर शेड डाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये तो सब कुछ सह लेगी, वो सह लेगी जब तक सहना चाहेगी, लेकिन जिस दिन वो शेरनी बन गई उसकी दहाड़ दुनिया को सहारनी मुश्किल हो जाएगी। कुछ ऐसा ही है इस पोस्ट। चलो जी, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई फील दैट जैसे हमने बोला कि वी हैव शेयर्ड कि जो एजुकेटेड वुमेन है वो कम सफर करती हैं,
as compared to the, because हमारी society is a male dominating society. आपको ये लगता है कि एजुकेटेड वुमेन जो है वो कम सफर करेगी और एक जो अनएजुकेटेड है वो ज्यादा सफर करती है, या ये दोनों अपने अपने लेवल पे हर तरह से मतलब क्रिटिसाइज होती हैं, हर तरह से क्रिटिसिज्म इनको इक्वली फेस करना पड़ता है? हाँ, क्रिटिसिज्म जो मैंने अपना हॉस्पिटल में भी देखा, वहाँ पे भी मतलब बेसिकली जैसे स्टाफ नर्सिस का एक अलग से लेवल है, एक ऊपर आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, है ना। तो जो क्रिटिसिज्म है ना वो सबसे बड़ी पोस्ट में भी है, और खासकर वुमेन्स के साथ ये है, क्रिटिसिज्म है ही है, ये मैंने देखा ही है। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल ही इलिटरेट है, मतलब एक वुमेन बिल्कुल ही पढ़ी ही नहीं है, तो उसको तो हर फील्ड में हर जगह पे फेस करना पड़ता है। उसका एक रीजन रहता है, बिकॉज उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना वो कहीं पे रहता ही नहीं है, उसको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। अब एक उसकी मेरे हिसाब से वो इच्छा ही खत्म हो जाती है कि कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात, बिकॉज वो एक घर के काम में बस उसने अपने आप को रख लिया होता है, उसका एक रूटीन यही रहता है कि मेरे को तो घर का ही बस ये झाड़ू पोछा करना है और ये सब। हाँ, जाने कितने साल वो ऐसे ही निकल जाते हैं, उसी चार दीवारी में निकल जाते हैं, और उनकी खूबसूरती चाहे वो चेहरे की हो, चाहे वो उनकी रूह की हो, चाहे वो उनके हुनर की हो, वो छिपी रह जाती है, वो दबके रह जाती है। आई फील कि आपकी बात बिल्कुल सही है नवनीत जी, वो दबके रह जाती है, और इसमें कहीं ना कहीं हाथ उस इंडिविजुअल का, उस औरत का खुद भी है। हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज जब तक आपको वो चिंगारी जब तक आप नहीं करोगे तो वो इट विल नॉट गेट इनटू द वाइल्ड फायर, यू जस्ट कांट लेट द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज यू। कहते हैं ना, भगवान जब भी आपको बनाता है ना तो आप में कुछ एक दो चीजें ऐसी जरूर छोड़ता है कि आप उस चीज को ग्रूम करो, लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो आप वैसे ही रहोगे। तो अब एक जो वेल एजुकेटेड पर्सन है ना, वो घर से निकली, अब उसके लिए क्या हो जाता है कि चैलेंज मेरे को लगता है बढ़ जाता है, बिकॉज उसको ये प्रॉब्लम फेस, जॉब थक के गई, 10 to 6 उसका टाइम है, घर पे जाके उसको खाना भी करना है। अब 10 to 6 में उसने क्या क्या फेस किया ये कोई नहीं पूछता है, ये कोई नहीं, सबको घर जाके क्या चाहिए, ये आ गई है, अब ये खाना भी बनाएगी, अब ये सब्जी, और अगर उसका मूड कुछ वैसा है, उसने किसी को टाइम पे खाना नहीं दिया। इसी बात में देखिए, हम जब देखते हैं कि व्हेन आई हैव सीन माय फादर, माय ग्रैंडफादर, जैसे ये जॉब से आ रहे हैं, अपने काम से आ रहे हैं, तो हम फटाफट लेडीज जो वो उनकी माय मदर से फटाफट पानी पिलाओ, पापा के लिए लेकर फैन ऑन करो, क्योंकि जैसे बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आई है वो, है ना, एंड वो जीतते भी होंगे, बट लेडीज के लिए सारा कुछ, वो लड़ाई जीते या हारे, वो प्रोफेशनल वर्क को करके फिर घर की लड़ाई शुरू होती है। हाँ, तो वो अब एक देखो, एक जेंट्स पर्सन आया, उसका क्या है, उसने 10 to 6 जॉब करी, उसको आया, घर पे चाय भी मिल गई, पानी, अब एक लेडी है, ये थक के आई है, अब उसको आप वेट कर रहे हो, ये खाना भी बनाएगी, और अगर उससे गुस्से से कुछ बोला गया तो उसकी खैर नहीं भी, अब वो उसका गुस्सा कैरी फॉरवर्ड हुआ उसकी जॉब में, और जॉब में उसने किसी को बोल दिया तो वो गुस्सा, मतलब उसकी लाइफ तो वैसे चैलेंजिंग हो जाती है भैया, ये चलता रहता है। तो आई फील कि जो क्रिटिसाइज बोलते हैं ना वो होता ही है, वो हर फील्ड में है, और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जितनी मैं एज जैसे हॉस्पिटल में हूँ मैं, तो ये चीज मैंने देखी भी है, मैंने फेस भी करी है, मतलब कि ये आपको जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने ही चैलेंजेस आपको, राइट, जितनी बड़ी पोस्ट होगी आपकी, जितना बड़ा आप जिस वर्क या ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, डेफिनेटली naturally criticism will be there and you have to face it and overcome it. So at last life goes on, चलना ही है, लाइफ में चलना ही है। तो we had a very healthy chat with her, and I'm really thankful that for the opening of this session I have got such a marvelous soul. So I would like to mention few of the names who are behind all this before I wind up. My program coordinator Mrs. Amrita, and my studio set in charge Mrs. Tarun, and of course your host Gursina Pritkar, but would like to mention my person who is behind this camera, Mr. Manpreet Singh, who is looking after the recording of this show. So it is a teamwork, right? It is a teamwork, and I feel that teamwork always goes the best if women is given a good opportunity. At the end, any one message for womanhood. अगर हम womanhood की बात करते हैं, तो अगर हम अपने शहर, छोटा सा शहर अमृतसर, उसके बाद आता है पंजाब, फिर आता है हमारा कंट्री इंडिया। यहाँ पे फीमेल की क्या, हम
अब मुझे ये सुनने में कभी कभी नवनीत बड़ा लगता था, लड़की कैसी है, बड़ी तेज है यार, बड़ी तेज है, इससे शादी नहीं करानी हमने अपने लोग, उससे करा, वो ना गाय है. Why like this? Why that always they need a guy girl? Why a guy girl is always preferred? So to wind up this show, I just want one message from your side, please. According to me, जब ये जुड़ते हैं ना, तो ये खासकर ये जो हस्बैंड वाइफ का एक रहता है ना, चाहे हम बोलते हैं कि ये रिश्ता दोनों का ही है, लेकिन ये जो गाय टाइप और ये सब चीज, वो इसलिए बोलते हैं कि वो लड़की जो है ना, जो वो चाहे खाना बना ले, जैसा बोले, इवन सब्जी भी उनसे पूछ के बनाए, तो उनको तो फिर वो काम वाली चाहिए रहती है. तो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माय वर्ड्स, बट द थिंग इज, ये ट्रुथ है, ऐसा ही है. अगर कोई गाय ढूंढ रहा है ना, तो वो आपको घर के लिए एक भाई नौकरानी लेके आ रहा है. और क्योंकि वो इसलिए कि कभी भी अपने आप की अपनी कोई चीज को उठा ना पाए, तो ये गाय और आपने बोला कि अगर खाना भी बनाना है, सब्जी कौन सी बनेगी, वो मम्मी जी हाँ, वो भी पूछ के बनाओ. दूसरा, अच्छा ये इनको ना कटहल चाहिए, लेकिन इनको ना आज कटहल का राजमा चावल का इनका मन है. अरे आपका भी तो कोई मन होगा, वो तो कुछ बनाना चाहते होंगे ना, वो तो which will never be appreciated. Definitely, वो तो आपने बनाया, ये क्यों बनाया भैया आपने? अगर अच्छी चीज बन भी जाती है ना, तो उसमें वो क्या बोलते हैं, नुक्स निकालना, वो फिर गाय लड़की के अंदर ही निकाल सकते हैं. अब एक चालाक, वो जो बड़ी तेज वाली लड़की है, वो तो वो तो नहीं करेगी ना. तो that's why they prefer to choose guy. And I hope you must have enjoyed. One thing I want to share about this NGO girl. Have you remembered, आपने मेरे को 2016 में बुलाया था एक बार इधर अपने just for guest lecture. तो मैंने एक बहुत मतलब अच्छा वाला एक चीज यहाँ पे देखी, बिकॉज मैं थोड़ा 2016 में मतलब हम गेस्ट बुलाते रहते थे. आज का सेशन तो था कि to know her through her words, right? So, लेकिन NGO Mission Leap में we keep on asking, because I've been the part of one of the NGO that is Mission Leap. It's my heart. So there, I always wanted few female personalities to come and interact. तो 2016 में जैसे ये नवीन जी कह रहे हैं कि ये एक बार हमारे एनजीओ के लिए क्लास सेशन में आए थे, फिर तो क्लास सेशन में आए थे, तो मैंने क्या नोटिस किया कि जैसे यहाँ के जो बच्चे हैं ना, आप देखो कि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है. अदर देन गुरसीमा प्रीत कौर, इन्होंने बड़े अच्छे से ये सब कुछ किया. But yes, I have the team. I am the one, a small part of this team. I have my coordinators, my colleagues, whole NGO, complete NGO, my president Mr. Kamalpreet Singh, his wife Mrs. Preeti Kaur, my coordinators Amrita, Pinky, Tarun, or the teacher staff. there are so many names that I would like to take. Yes. मेरे को था कि जैसे आप इन लोगों ने इन बच्चों की करी है ना, वो एक घर में जैसे नॉर्मल हम रह रहे ना, वो नहीं है. जैसे मैं आई उधर, सारे बच्चे खड़े हो गए, मतलब वो एक वार्म वेलकम, जो रिस्पेक्ट आपको फील हुआ ना, वो मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. और उसके उलट ना, जैसे मैं थोड़ा टाइम के लिए ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई थी, तो सर्वे के लिए जैसे हम जाते थे, तो मेरे को याद है कि वहाँ पे मैं आई वुड नेवर would not like to mention the name of that big branded schools or something, but the difference is, वहाँ पे जब हम एंटर करे ना, मेरे पास और 2-3 कोलीग्स थे, मतलब किसी को पता ही नहीं है, फर्क ही नहीं है भाई कि कोई क्लास में एंटर कर रहा है. हार्डली मैटर्स. आप आए और चले गए, और वो फीलिंग ही नहीं, वो फीलिंग ही नहीं आया कि हम किसी मतलब बच्चों के क्लासरूम में गए थे, एजुकेशनल गुरुकुल में आए हैं. तो वो एक चीज आज भी, जब भी कभी भी मैं इधर आती हूँ ना, तो सारे बच्चे खड़े हो जाते, तो एक वो जो फील होता है ना कि इन बच्चों से सीखने के लिए बहुत कुछ है. जो बच्चे इधर बढ़ रहे हैं ना, जिनका अपब्रिंगिंग हो रहा है ना, इनका बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है, और ये बच्चे अलग अलग जगहों पे जब जाएंगे ना, तो इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. इनको मैसेज तो आई डोंट फील कि मैं इनको कुछ दे पाऊंगी. मैसेज मेरा यही है कि अपना ये जो ऑरा, अपना ये जो एक इनका मैनर्स का एक है ना बिहेवियर, जो भी इनका एक दिखता है इधर आके, आपको बड़ा सूदिंग फील होता है, बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है कि आप एक ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे फुल ऑफ मैनर्स, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप बड़े सिस्टमेटिक, जैसे होता है ना, बोलते हैं सिविलाइज्ड और आर्मी में एक बड़ा फर्क रहता है, तो मैं ऐसे उनको बोल सकती हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बड़े मैनेज्ड civilized society. You stepped into a civilized society. I am grateful for your words. Thank you so much.
And I hope once my NGO girls will, listen to the feedback of Mrs. Navneet Kaur, they will be surely more organized and more motivated. Thank you so much, Navneet. And at last but not least, take care. Always have a smile on your face, because when you will smile, for you the joys will pile, to the strength it will compile, and yes, you could add the more starry certificates in your personal file. Thank you so much. Hope to see you soon for the next week, the coming times, with the new face and the new guest and with a different aura which we will be sharing with you and with all the people around. Thank you so much. Till then, take care. Goodbye. Here your host, Seema Preet Kaur. Wish you good luck and hope to see you soon in coming times. Thank you.